and record. Okay, so let's go and start this class, guys. And this class is purely based on the personality development. If you have any problem, you can go ahead and converse with me via chat. For example, Ayush is asking me a question, so when did you travel to space? So I'm not traveling to space, to be very honest, but yes, this will bring something new to your life as well. And मुझे हमेशा ये लगता है कि जो आपकी desire है, जो आपके सपने हैं, वो जरूर देखने चाहिए. Until unless you are not seeing the desire or the thing to achieve something, तो life में कभी हम कुछ achieve नहीं कर सकते. तो मेरा भी एक desire है to go on space. I don't know when it will be fulfilled like Dennis Tito, because Dennis Tito was the first one who became a space tourist. वो सबसे पहले space tourist थे जो कि गए थे. तो I also want to be a space tourist. तो देखो कभी अरमान पूरा होगा, and slowly and gradually we'll talk about it later on in the next session. Let's not go and waste time. Let's talk about the basic topic that I'll be going and teaching you, and that topic is about the personality development, guys. Personality development is one of the important topic जो हम बहुत बड़ी बातें करते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर ले. What steps we can go ahead and do to enhance the personality, but actual में होता क्या है? What is the actual concept and actual thing behind this particular thing? वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा. क्या टेक्निक्स हम इम्प्लीमेंट करें कि किसके थ्रू हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव हो. Meanwhile, Piyush, make sure that you're taking the attendance as well. आज की attendance आप लीजिएगा, and make sure that you're sending on my personal WhatsApp as well. ठीक है, so I have Yuvraj with me. हमेशा he makes sure that he's coming 5 minutes late, but कोई बात नहीं. People are student of mine, and I appreciate that you're coming down here to learn something very productive. Okay, so let's go ahead and start my class for today, and this class is based on purely what are the techniques of personality development. गाइज आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव किया जाए, और इसके बारे में जो डिटेल्स है, जो स्लाइड्स है, दैट आई एम गोना गो अहेड एंड टीच यू नेक्स्ट डे, दैट इज टुमारो. कल मैं आपको इसके बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में स्लाइड्स के थ्रू बताऊंगा. गुड मॉर्निंग युवराज. सो आई विल बी टीचिंग यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू स्लाइड्स और बाय स्लाइड्स टुमारो. बट आज हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कैसे होगा. यस, आई एम इन स्पेस टुडे. यस, you can see me at the background. ठीक है, so this is, ये space का background किसने लगाया है युवराज? Because my dream, हमेशा अपने dream को सोचना चाहिए. So my dream is to be a space tourist. So one day or the other, my aim is to go ahead and travel around the space as well. Being a space tourist, so you never know. आपको dream देखने चाहिए. Until unless you are not dreaming something, आपका goal fulfill नहीं हो सकता. So you need to go ahead and see a dream, and you should go ahead and have a right approach towards it. एक सही दिशा में काम होगा तभी आप कुछ कर पाओगे. Let's go ahead and not waste time. Sir, did you do this? I mean, I didn't get your question, Anmol. Didn't get your question. What to do this? Okay, मैं बाद में आप लोगों को सिखा भी दूंगा कि ये कैसे करते हैं. वर्चुअल बैकग्राउंड इफेक्ट्स होता है जिसको हम यूज करके जूम पे यूज करते हैं. ठीक है, so it's about all the techniques which have been there. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि Zoom के साथ सिर्फ आप मीटिंग ही नहीं ले सकते. There are various many things in Zoom wherein you can go ahead and use it as a great technology as well. So let's go ahead and start my class as well. Let's not waste time. That's much important. Let's go and have it today. Okay, let's go ahead and proceed with the class. To be very honest, चलो क्लास के साथ चलते हैं. It's not about the thing. ठीक है, चलो और हम देखते हैं कि important thing क्या है आज की क्लास में. Okay. ठीक है, so you are seeing that my screen, मेरी screen सबको दिख रही है. Can you see my screen? Everybody on the chat. No need to go ahead and speak. You can go ahead and converse with me on a chat. Chat will be a better option. Any problems, anything that you want to go and converse with me, you can go ahead and do it via chat. Okay, guys, thank you so much. So let's go ahead and start the class. ठीक है, which is much important. कि sir, personality development. देखो, what are the important points to improve personality development? Important points, ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा. Important points to improve PD. ठीक है, improve PD यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अगर आपको improve करना है तो क्या क्या important points आपको ध्यान में रखने हैं. गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट यू शुड आल्सो रिमेंबर इट कि सर क्या क्या पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखने हैं पीडी में. सो पीडी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको नॉलेज में रखने हैं, वो
जिंदगी में कभी भी आप भूल जाओ, क्योंकि हमारा दिमाग है, जब भी कोई चीज हम याद करते हैं तो कभी हमारा हाइपोथैलेमस कुछ देर के लिए खुलता है, ग्रैब करके फिर बंद हो जाता है। तो जितनी देर में आप हाइपोथैलेमस का इस्तेमाल करते हैं लर्न करने में, आपके दिमाग में उतनी चीज फीड होती रहती है। तो जिंदगी में कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कौन से पॉइंट्स के सर ने बताए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप हमेशा उनको बताइएगा भाई सर ने बताया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, पीसीबी, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो मैंने अपने टाइम पे इस कोड को बना के याद किया था चीज़ों को, ठीक है, ताकि मेरे जिंदगी में हमेशा मुझे याद रहे कि पीसीबी मीन्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और एनडी मीन्स न्यू दिल्ली। ये कोड है। होता क्या है, माइंड जो हमारा होता है हमेशा लॉन्ग चीजें याद नहीं कर सकता, बट वो अगर आप कोड बना के अपने माइंड में चीजें स्टोर करना शुरू कर दोगे तो वो आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए, एवर लास्टिंग टाइम के लिए वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो यही मैंने कोड हमेशा याद रखा। आई थिंक आई लर्न दिस इन द बीटेक फर्स्ट ईयर व्हेन आई अटेंडेड अ सेशन ऑफ संदीप माहेश्वरी। सो संदीप माहेश्वरी का एक सेशन था, सो आई अटेंडेड दैट संदीप माहेश्वरी ऑन द पीडी एंड ही टोल्ड मी अबाउट पीसीबी एनडी। तो पीसीबी एनडी के बारे में मैंने सीखा और उन्होंने मुझसे जो भी चीज कन्वर्स की उन्होंने बताया, और रियली इट हेल्प्ड मी अ लॉट टू इंप्रूव माय पर्सनालिटी एज वेल। तो गाइस पर्सनालिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम पर्सनालिटी का करता है। तो जो पर्सनालिटी आया है, पर्सनालिटी का मतलब होता है पर्सोनिफाई करना, ठीक है। सो आई लेट यू नो वन मोर टाइम, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्सनालिटी डेवलप, पर्सनालिटी, सो पर्सनालिटी का मतलब होता है इनहांस करना, ठीक है, टू इनहांस योरसेल्फ। दैट मीन्स अपने आप को दिन भर दिन निहारना, अपने दिन भर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है, अपने अपनी अलग बनना, ठीक है, टू बी डिस्टिंग्विश, ठीक है, टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर लेना। अगर मैं मानूं कि 100 का एग्जाम दे रहा हूँ, मतलब 100 लोग एक पेपर दे रहे हैं, एक एग्जाम दे रहे हैं, तो उन 100 में आप कैसे डिफरेंट हो रहे हो, ठीक है। जो टॉपर होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी स्टडी का तरीका, उसकी मेथोलॉजी ऑफ स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग वो एकदम इंटायरली डिफरेंट होती है बाकी 99 लोगों से। सो यही चीज है कि वो उसकी अलग पर्सनालिटी है, वो डिस्टिंग्विश हो रहा है, अलग हो रहा है। तो उसको कैसे इनहांस करते हैं, सिर्फ ये पीसीएमबी टेक्निक से, पीसीबी एनडी से। तो व्हाट इज दिस पी स्टैंड्स फॉर, पी जो होता है दैट इज प्रमोट, ठीक है, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, प्रमोट ऑप्टिमिज्म। आई जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो दिस विल बी प्रमोट ऑप्टिमिज्म, ठीक है, एंड ग्रैटिट्यूड। सो गाइज ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ऑप्टिमिस्टिक एंड ग्रैटिट्यूड। भाई ये ऑप्टिमिज्म होता क्या है, व्हाट इज दिस ऑप्टिमिज्म ऑल अबाउट? सो ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है वन हु लुक्स ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। अगर हम चीजों का कभी भी पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ देखते हैं, दैट इज नोन टू बी द ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है सर? ऑप्टिमिज्म मीन्स वन हु बिलीव्स इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। जो चीजों का हम पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ देखते हैं उसे हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं, दैट इज नोन एज द ऑप्टिमिज्म एज लाइफ, ठीक है। मतलब कोई भी चीज का अगर हम पॉजिटिव चीज देखते, पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि हम दिन भर में 10 लोगों से, अनजान लोगों से मिले या 20 लोगों अनजान लोगों से मिले, बट गाइस हमें उसकी कमियां नहीं देखनी है, उसकी नेगेटिविटी नहीं देखनी है। वी हैव टू टेक द पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव को भूल जाइए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई गेम है, कोई स्पोर्ट्स है, ठीक है, मैं उसमें कम्पीट कर रहा हूँ, मेरी टीम ही नहीं अच्छी और मैं बार बार हार जा रहा हूँ, तो मैं वहां पे ग्रिल करने लगूंगा। मैं ये सोचने लगूंगा कि यार मुझे टीम ही नहीं अच्छी मिली तो मैं कैसे जीत पाऊंगा। नहीं गाइस, मुझे पहले देखना है कि मेरी टीम में प्रॉब्लम्स क्या है, whether there is a problem of skill set, where is there is a problem of will issue, where there is a problem of anything else. I need to go ahead and work on that. I need to go and improvise upon that. मैं अगर उस पर जो मेहनत नहीं करूंगा, मैं फिर आगे उनको लेके आगे नहीं पढ़ूंगा। सो जो आदमी ये सोचता है कि चलो यार यहाँ पे हमें टेस्ट में कम नंबर आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने देखना है कि गलतियां क्या करता हूँ मैं। मे भी हो सकता है कि मैं हमेशा सिली मिस्टेक्स करता हूँ। सो मेरी ये अप्रोच होनी चाहिए, ये मेरी सोच होनी चाहिए कि मुझे अपनी जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करना है। अगर आपने अपनी कमियों को इम्प्रूव कर लिया, बिलीव मी यू विल बी वन ऑफ द एसेट्स, ठीक है, आप वन ऑफ द एसेट्स बन जाओगे।
और बहुत जरूरी है आपको ये चीज करना, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर दैट योर पीपल आर डूइंग अहेड एंड योर पीपल आर क्रिएटिंग दैट थिंग एज वेल, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज रखना है कि यू पीपल हैव द पॉजिटिव अप्रोच इन। अगर गाइस अप्रोच ही नहीं आपकी सही है तब आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग दैट पॉजिटिव अप्रोच इन योर लाइफ, इफेक्टिव अप्रोच इन योर लाइफ, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। दूसरा चीज है ग्रैटिट्यूड। गाइस मैं कहता हूँ जो भी हमसे बड़े हैं, एल्डर्स हैं, हम उसको सम्मान देंगे और छोटों को नेग्लेक्ट मत करना, हमेशा उनको गाइड करते रहो। तो ताकि आपकी इमेज जो रहती है वो ये नहीं होती है कि भैया टाइप्स इमेज नहीं बनाना है आपको, आपको ऐसी इमेज लगी सो दैट की पर्सन कैन कम डाउन एंड फील टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब ऐसा एटीट्यूड है कि जिससे कोई भी बात करके उसको थोड़ा सा टाइम मिले। बिलीव मी गाइस, मेरे पास इतने सारे दोस्त और काउंसलिंग के कॉल्स आते हैं, आई टू रिसीव्स हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स डेली, ठीक है, हंड्रेड ऑफ कॉल्स डेली। कोई किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई इतना डिमोटिवेट हो गया कि लाइफ ही खत्म करना चाहता है। तो गाइस ये चीजों आपको निग्लेक्ट नहीं करनी। हाँ कभी कभी मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ कि यार 100 कॉल्स डेली आ रहे हैं, कैसे अटेंड करूँ। बट गाइस अगर आप यही अप्रोच अगर सोचो कि वो 100 उम्मीद में बैठे हैं कि कहीं ना कहीं यार ये मुझसे कुछ बात करेगा, कुछ ना कुछ नया टेक्निक देगा मुझे, सो दैट शुड बी द पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ एज वेल, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड इज समथिंग कि हमको भाई बड़ों को सम्मान देना है। एंड कई बार ऐसी बातें होती हैं जो बड़े भी कभी आपको लगता है लॉजिकली दे आर टॉकिंग, यार इसका हो नहीं सकता, बट आप सुन लो, मैं कह रहा हूँ आपकी उनकी बात सुन लो, वहां पे उसके अंदर भी कोई बातें कुछ अच्छी होंगी तो आप उसको इंटैक्ट कर लो, थोड़े अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करो और एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भी कई बार मैटर कर जाता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में भी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू इंप्रूव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज यू नीड टू नंबर 1 प्रमोट ऑप्टिमिज्म। प्रमोट ऑप्टिमिज्म मतलब हमेशा सही चीज देखो, पॉजिटिव थिंग्स देखो इन योर लाइफ। एंड द सेकंड थिंग इज द ग्रैटिट्यूड, यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स। रिस्पेक्ट अदर्स मींस किसी का नेग्लेक्शन नहीं करना, बड़ों को सम्मान देना है। It's a kind of a thankfulness. Very good word. So that's what I'm saying, that you don't have to neglect others. ठीक है, किसी को मतलब नीचा नहीं दिखाना है, बड़ों का आप सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार दीजिए। That is the first and the foremost thing that you need to have a approach towards personality development. तभी लोग आके आपसे मिलेंगे, सोशलाइज होंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको अलग समझेंगे दुनिया से, और तभी आपकी पर्सनालिटी और निखर के आएगी, ठीक है। चेंज लाओ, जैसे सोसाइटी में कहते हैं ना चेंज लाओ, तो वो चेंज कौन लाता है? लोग बहुत स्पीचेस देते हैं, बहुत चीजें बोलते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सर कितना बातें कर रहे हैं, सिर्फ ये सब कहने वाली बात होती है, बट असल दुनिया दूसरी चीज होती है। सही गाइड, यही चीज तो सब कोई सोचता है यार। आप यूनिक बनिए, आप अलग बनिए, तब जाके ये चीजों को अमल करेंगे तो आप देखिए किस तरह चीजें अच्छी लगने लगेंगी। सेकंड सी स्टैंड्स फॉर, जो सी होता है दैट इज कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली गाइस, मैं कितनी बार आपको कम्युनिकेशन में भी पढ़ाया है कि एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। Until and unless I'm not able to communicate with people around, अगर मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, if I'm not able to talk to anyone, ठीक है, that will be a difficult thing altogether। मतलब मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, अपने अपने चीजें ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो गाइज वो चीज क्या हो जाएगी, वो चीज क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगी। या वो सेंडर से लेके रिसीवर का जो प्रोसेस मैंने बताया था, थ्रू वाया चैनल कर रहे हो और रिसीवर फिर आपको फीडबैक दे रहा है वाया सेंडर, वो चीज इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। सो यू नीड टू गो अहेड एंड मेक श्योर कि जो चीजें हैं, जो चीज आप करो, जो चीज आप बोलो, जो चीज आप बताओ, ठीक है, दैट शुड बी प्रॉपरली सिंक्रोनाइज। बहुत जरूरी है सिंक्रोनाइजेशन करना, बहुत जरूरी है चीजों को बताना, बहुत जरूरी है चीजों को रखना। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर गोइंग अहेड एंड एक्सप्रेसिंग समथिंग, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और गाइस कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? सबसे पहला चीज मैंने क्या बताया था, लैंग्वेज। लैंग्वेज आपका हमेशा सही होना चाहिए। द नंबर और द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज द लैंग्वेज थिंग। जब लैंग्वेज ही नहीं क्लियर है तब हम कुछ कर ही नहीं सकते। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। सो यू नीड टू गो मेक श्योर कि हमारा लैंग्वेज बहुत इंटैक्ट हो, ठीक है, लैंग्वेज हमारा सही होना चाहिए। लैंग्वेज इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप ऑन माइंड। अब किसी को हिंदी, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश में ही बात कर रहा हूँ, राइट, आई एम टॉकिंग टू यू इन हिंदी एंड इंग्लिश।
नाउ फॉर एन इंस्टेंस कि किसी को इंग्लिश और हिंदी समझ में ही नहीं आ रही, ठीक है, आप मान लीजिए किसी को हिंदी और इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है, और मैं बक 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 किया जा रहा हूँ, तो गाइस उसका आउटपुट क्या है? इट विल बी अटर रबिश, वो जीरो, क्योंकि कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। अब गाइस मान लीजिए किसी को पंजाबी ही सिर्फ आती है और मैंने हिंदी और इंग्लिश में रख दिया, ठीक है, तो कोई फायदा है ही नहीं उसको समझाने का, दैट विल बी अटर वेस्ट। तो कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनालिटी। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा तो आपका देखेंगे आप धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। तो नीड टू गो एंड मेक श्योर कि कॉन्फिडेंस एकदम सही हो, ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो भी कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, ठीक है, दैट शुड बी इंटैक्ट, वो एकदम से सही होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन ही नहीं सही है, देन देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। सो यू नीड टू मेक श्योर कि कम्युनिकेशन शुड बी इंटैक्ट, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। और द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के साथ, क्या है? लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज आपको सही करनी है। सेकेंड चीज है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है किसी से भी बात करो तो पोलाइटनेस की तरह बात करो। आप हमेशा ये पोलाइट की जो क्वालिटी है कर्टेसी में, वो हमेशा मेंटेन रखेंगे। Until unless you are not maintaining that courtesy quality in yourself, that will create lot of problem. मैंने बताया था किसी भी काम को करने के लिए कर्टेसी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको काम करवाना है। आप किसी आईएएस को एक चीज लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो टू इम्प्रूव समथिंग और द अदर, और यू आर गोइंग एंड सजेस्टिंग समथिंग, भाई वो काम कब होगा? आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हो, आप उसको कर्टेसी से बात बताओगे, पोलाइटनेस से बात बताओगे। तो लैंग्वेज एंड कर्टेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में। गाइस तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है लाइफ में और जो चीजों को और इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाता है, वो है स्ट्रेट टॉक, ठीक है। वी नीड टू कीप इन माइंड whenever we are going ahead and talking, it should be straight talk, ठीक है। मतलब स्ट्रेट मतलब हमें सीधी बातचीत करनी है, हमें घुमा फिरा के बीटिंग अराउंड द बुश की बात नहीं करनी है। हम अगर इस चीजों को बीटिंग अराउंड द बुश करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग अहेड एंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल अराउंड, वी नीड टू गो एंड कम्युनिकेट क्लियरली, वी नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक है। तो हमको ये चीज करना है, वी नीड टू मेक श्योर कि यार भाई चीजें अगर मैं किसी को बता रहा हूँ, किसी को भी कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, वी नीड टू मेक श्योर कि मैं उसको सही से टॉक करूँ, सही से बताऊं, ताकि वो कम्युनिकेशन जो हो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। तो गाइस पहला पॉइंट जो पी बताया है, दैट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म और ग्रैटिट्यूड रखो। दूसरा चीज है कम्युनिकेशन क्लियरली। कम्युनिकेशन कब क्लियरली होगी? जब लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रखा जाएगा, कर्टेसी को आप ध्यान में रखेंगे और स्ट्रेट टॉक करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब है कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे जो किसको समझ में आए। नाउ दिस बी स्टैंड्स फॉर, ये जो है बी है बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट है, बी कॉन्फिडेंट। गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग अहेड एंड अपना पक्ष रखोगे या अपनी बात रख रहे हो, आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट विल रिजल्ट टू अ ड्रास्टिक रिजल्ट, मतलब वो बेस्ड है, अटर बेस्ड, बट आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। मतलब मैं बिना पढ़ाए आ रहा हूँ, आपको कुछ भी अंडरस्टैंड बक दे रहा हूँ यहाँ पे, या कुछ भी आके यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, दैट विल नॉट बी अ थिंग। आई नीड टू मेक श्योर व्हेनेवर आई एम गोइंग अहेड एंड कमिंग डाउन इन क्लास, आई नीड टू बी वेरी प्रोडक्टिव। मुझे प्रोडक्टिव स्टडीज पढ़ानी है आपको, तो मुझे मेरा एम ये होना चाहिए, व्हेनेवर आई एम गोइंग अहेड एंड टेकिंग योर क्लास, आई नीड टू बी वेरी प्रोडक्टिव। मुझे हमेशा प्रोडक्टिव क्लास आपकी पढ़ानी है। तो गाइस दैट्स आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वी नीड टू बी इन कॉन्फिडेंट प्लेस, राइट। सो हमें ये कॉन्फिडेंस चीज रखनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है जो मेरा एन है, दैट्स एन स्टैंड्स फॉर, N stands for, this is be confident, right? And this N, ये वाला जो N है क्या होना चाहिए? सोचो क्या होना चाहिए N? कोई ट्राई करना चाहेगा? पहला तो ऑप्टिमिज्म ग्रैटिट्यूड, दूसरा कम्युनिकेशन क्लियरली, तीसरा बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, चौथा N, एनीवन हु वांट्स टू गिव अ ट्राई, N क्या होना चाहिए? नेवर क्विट, ठीक है, नेवर क्विट। गाइस इस पे यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको आज बात करना चाहूंगा, बिहेवियर नहीं होगा, नेवर क्विट एटीट्यूड। मैं इस पे बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत दिन से बात करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ लाइफ में कई लोग इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को खत्म करना शुरू कर देते हैं, दे गो एंड प्रोन टू सुसाइड थिंग्स एंड ऑल। गाइस इतनी अच्छी दुनिया है, एक बार मिली है लाइफ, ठीक है, और स्ट्रगल्स ही ये दुनिया का सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट। अगर ऊपर वाले ने हमको स्ट्रगल्स ही नहीं दिए होते तो हमारा ब्रेन टेस्टिंग, हमारी थिंकिंग ये कैसे हो पाती। तो ये सिचुएशन जो है किसको हम टैकल कर सकें,
ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ नेवर क्विट एटीट्यूड. वी शुड हैव दिस नेवर क्विट एटीट्यूड इन आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है, हमें हार नहीं माननी है यार. हम एक बार हारे यूपीएससी, 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4 बार हारे, हम प्लान बी तैयार करेंगे. प्लान बी नहीं होगा, प्लान सी तैयार करेंगे, कोई बात नहीं. वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट लाइफ को एंड कर देना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. ये तो आपकी गलत हो गया. इट्स नॉट बिहेवियर, अमन. ठीक है, मुस्कान इज एब्सोल्युटली राइट. वी शुड हैव अ नेवर क्विट एटीट्यूड. वी शुड नॉट गो अहेड एंड ये कह दे कि यार हम तो हार गए हैं, अब मैं क्या करूं जिंदगी में. एक काम करता हूँ, जहर खा लेता हूँ 5 रुपए का, या यार फांसी लटका लेता हूँ अपने आप को. गाइस, ये सब चीजें कौन बोलता है? हु इज अ कोवार्ड. कोवार्ड मींस जो कि कायर होता है. ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी हैविंग दिस नेवर क्विट डाई एटीट्यूड. गाइस, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको मन एकदम वो हो गया, आप सोच रहे हो खत्म करने की, guys, believe me, I'll be your friend till the end of the life. You can call me n number of times. I'll be there to help you in the best possible manner I can. But कभी भी जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है यार. This helps you a lot to fight. Be a fighter, not be a coward. ठीक है, कितनी बार ऐसे इंस्टेंस हुए लाइफ में मेरे भी और मेरे दोस्तों के साथ, उन्होंने मुझसे कॉल किया कि यार खत्म कर रहा हूँ, बस अब हो गया. तो मैंने उनसे बोला कि भाई, why not go and look for the other options, all the alternative options altogether. और सीरियसली उन्होंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अपनाए और आज कई लोग मैनचेस्टर में हैं, कई न्यूकासल में हैं, somebody situated in California. So the people are going ahead and doing wonders. So you should also be creating this quality of going ahead and saying a never attitude. We should never quit in life. Why to go ahead and quit in life, guys? Guys, एक बार लाइफ मिली है, we should go ahead and live it to the expectations. हमको इसको अच्छे तरीके से जीना है, and that should be our USP. Now, the last and the last point जो D है, ठीक है, the D is very important. Dress decently. Guys, अब मुझे ये बोलोगे तुम लोग कि सर कपड़े का पहनावा कैसे पर्सनालिटी को डेवलप करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज लाइफ में किसी भी ड्रेस को. गाइज, अब ये पार्टी में अगर मुझे कहोगे कि सर आप एक काम कीजिए, कुर्ता पैजामा पहन के जाइए, तो दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन. नॉट पार्टीज में जाएंगे पार्टी वेयर पहन के, स्पोर्ट्स खेलेंगे. अब भाई स्पोर्ट्स खेल लो और वहां पे मैं कहूँगी कोट पहन लो, टाई पहन लो और पूरा मतलब अपने आप को ड्रेस कर लो डिसेंट और जाओ मैदान में उतरो. नो, जब स्पोर्ट्स खेलेंगे तो भाई स्पोर्ट्स का ड्रेस किट में जाएंगे, प्रॉपर लोअर में टी-शर्ट्स में जाएंगे. When I'm going ahead and taking class, I need to make sure that I'm wearing a decent dress. Either I'm carrying a t-shirt for an online or I'm coming down and wearing a formals when I'm going ahead and talking to the other person. When I'm going into a meeting, I'm using formals, right? When I'm going for any business purpose, I'm using formals. But when I'm going ahead and sleeping, I'm a formal पहन के थोड़ी ना सोऊंगा. I have my own Bermudas and everything I need to go. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी पर्सनालिटी को ये दर्शाता है कि किस तरह आप ड्रेसिंग कर रहे हो. अब गाइज एक बात मुझे बताना, आप जा रहे हो ऊपर वाला जैसे कि आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो, ठीक है, आप बर्थडे में जा रहे हो और आपने एक टी शर्ट पहनी और नीचे हाफ पैंट पहनी और उस पर जूता पहन लिया. ठीक है गाइज, कितना ऑड लगेगा, खुद सोच के देखो कि वो दिखाएगा कि आपकी मतलब इतना ऑड लगेगा आपको खुद कि आप कैसे जाओगे अपने. तो जो भी ड्रेस आप पहन रहे हो उसको आप कैरी कर पाओ. Until unless you are not able to carry that particular dress, that's utter waste. So that's also very important character that you need to keep in mind. Whatever I am going ahead and carrying, that should be a proper thing altogether. ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के चल दिए और बस हो गया हीरो. No guys, you need to wear a proper dressing style as well. तो guys, बहुत important points है personality development में जो मैंने आज की क्लास में डिस्कस किए. That's that you need to promote optimism and you have a gratitude nature as well. Optimism means one who looks on the positive side of the life, right? हमेशा positive approach, positive thing हमको सोचनी है. The second thing is the gratitude thing. Gratitude means होता है क्या कि सर हमें self thankful होना चाहिए लोगों के प्रति, या जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर जो भी हैं लोग, मतलब जिसका जो elders हैं अपने, उनको सम्मान देना है आपको, और जो बच्चे हैं उनको neglect नहीं करना, उनको भी love और gratitude देना. C stands for communication clearly. किसी भी effective पर्सनालिटी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी बातें अपनी रखें, दैट शुड बी कम्युनिकेट क्लियरली. उसके लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें आप मैसेज कन्वे कर रहे हो. दूसरी चीज कर्टेसी यानी पोलाइटनेस होनी चाहिए आपकी बात में, ताकि नेक्स्ट वो बंदा जो है वो आपकी बात सुने और उससे इम्प्रेस हो. थर्ड है कि हमको कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं करनी है. अगर नाक हम इस तरह पकड़ते हैं तो हम इस तरह पकड़ सकते हैं. व्हाई टू गो हेड एंड हैंडल लाइक दिस, वी कैन डू लाइक दिस, राइट? Fourth is we need to be
be confident. We always need to carry this attitude of going ahead and be confident. हमें हमेशा confident रहना है, ये नहीं कि भाई कि हम confident नहीं है, भाई छोड़ो कुछ नहीं सस्ते, ठीक है हमसे क्या होगा। Guys, I understand कि nervousness होती है, मैं क्या आप क्या मेरे में भी होती है कि कोई एग्जाम्स लिखने जाऊं, कोई फेयर, बट वो धीरे धीरे एज के साथ जाती रहती है, बट उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसको दिमाग में हावी होने दिया, ठीक है, तो हम सब खत्म हो गए। गाइस, आप एग्जाम्स देने जाओ या कुछ भी एग्जाम्स लिखने जाओ, ठीक है, सबसे अच्छी बात आपको क्या है, कुछ अलग सोचो, गाना सोचो, ठीक है, मन में कुछ अलग थॉट्स लाओ, पॉजिटिव थॉट लाओ, ठीक है। ये सोचो कि यार मैं क्या होगा, क्या करूंगा, क्या अगर नंबर कम आ गया तो मेरे क्या होगा, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि नहीं मैं पढ़ के आया हूँ और मैं लिखूंगा। जब आपने ये सोच लिया दिमाग के अंदर कि नहीं मैं पढ़ के आया हूँ और मैं लिखूंगा, दैट मीन्स आप लिखोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। बट जब आपने ये सोच लिया कि क्या होगा, मम्मी सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, फलाना क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या समझेंगे, तब वहां पे चीजें गड़बड़ाना शुरू होंगी, ठीक है, और वहां पे जो चीज आता भी होगा वो चीज जीरो हो जाएगा। सो नीड टू मेक श्योर कि एक पॉजिटिव अप्रोच आप रखो। नेक्स्ट है नेवर क्विट डाई एटीट्यूड। नेवर क्विट डाई एटीट्यूड का मतलब है गाइस, हमेशा हमको कभी भी क्विट नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। हमको हमेशा ये अप्रोच होना चाहिए, ये लाइफ में हमेशा जज्बा होना चाहिए कि गाइस एक बार जिंदगी मिली है एंड आई हैव टू लिव एंड कंप्लीट दैट एक्सपेक्टेशंस। इट शुड नॉट बी लाइक कि यार हार गए, जिंदगी में चीजें खत्म हो गई, अब क्या होगा, फलाना क्या होगा। कोई यार कोई किसी के लिए कर नहीं देता इस लाइफ के अंदर, जो करना है आपको खुद करना है, ठीक है। लोग बातें करेंगे, बट उन लोग जो बातें कर रहे हैं कभी उनसे प्यार से जाके बैठा के काउंसिल कीजिएगा और पूछिएगा कि आपने बचपन से लेके अभी तक मेरे लिए क्या किया। वो आपको एक चीज भी बता पाए तो बेटर होगा। बहुत रेस्पेक्टफुली हमको बात करना है। कई लोग के अंदर ये नेचर होता है कि बोल दिया, बस मन में अंदर भरा हुआ था बोल दिया। नहीं गाइस, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट टॉक करने का मतलब है कि रूड टॉक नहीं करेंगे, ठीक है। अब कोई आके जैसे कि पूरी सोसाइटी ने मान लिया कि आपका घर एक कूड़ा है, लोग आके कूड़ा फेंकते हैं, ट्रेडिशन बना हुआ है। तो गाइज अगर आप चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे उसका तो ऑल्टरनेटिव निकलेगा, बट बहुत लेट में निकलेगा। सबसे अच्छा सोल्यूशन है जो फेंकता है, ठीक है, आप पहले देखिए कि क्राउड किस समय में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। हमने देखा कि इस मैक्सिमम टाइम पे लोग सबसे ज्यादा इकट्ठा होते हैं। आप भी खड़े हो जाइए कूड़ा लेके, फिर आप वहां पे बोलिए कि ये देखिए मेरा घर है, ये कूड़ा खाना है, ठीक है, और इसे मेरे फादर ने बहुत प्यार से बनाया था, बट आप सभी ने इसको कूड़ा खाना बना दिया है। गर्व है मुझे इस कूड़ेदानी के लिए और मैं एक कूड़ा उठाने वाला इंसान। गाइस जब ये कोई सुनेगा ना, शर्म के मारे वहां से हट जाएगा। इट्स नॉट कॉल्ड गांधीगिरी, बट इट्स कॉल्ड द एक्चुअल बिहेवियर और पर्सनालिटी। आपने क्या हुआ, डुअल फेस कर दिया माइंड के साथ। उसकी साइकोलॉजी, वो आया था आपसे लड़ने के लिए, वो आया था ये देखने कि आप कितनी जल्दी हाइपर होते हैं, आप कितनी ज्यादा एंगर होते हैं, बट आपने क्या हुआ, उसको डाइवर्ट कर दिया, मोल्ड कर दिया, चीज ही डिफरेंट कर दिया आपने। तो दैट बिकम्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑलटुगेदर, ठीक है। तो ये चीजें हमको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। सो वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नेवर क्विट इन लाइफ एंड ड्रेस डिसेंटली। ड्रेस का भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डे टू डे लाइफ। सो गाइस ये थी आपकी जो चीजें मैंने आपको रैप अप करके बताई है। गाइस इसमें कोई भी डाउट है वाया चैट आप मुझे बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा है, anything that you want to go and ask from me, any problem that you have in any of the points outlining, you can go ahead and let me know right now. Anyone, and you can go ahead and let me on the chat that whether everything that I have taught you in this class is clear, each point. हमेशा याद रखिएगा ब्रह्मास्त्र होता है PCB, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी याद कर सकते हो आप, या मैं तो ऐसे याद किया हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यू दिल्ली, मुझे याद रहा है बचपन से, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी न्यू दिल्ली ये भी याद कर सकते हो एज पर योर विश। ये टोटल आपका चीज है, ये आपका चीज है कि जिस तरह से आप चीजों को रिमेम्बर करना चाहो, जिस तरह से वो चीजें आपके पास लॉन्ग टर्म याद रहेगी, तो ये आपकी अप्रोच है, ये आपकी चीज है कि किस तरह आप चीजों को रिमेम्बर कर सकते हैं। मैंने आपको एकदम चीजें क्लियर कर दी है। कल जब मैं क्लास के अंदर आऊंगा गाइस, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं वाया स्लाइड्स इसको और इलैबोरेट करके स्लाइड्स के थ्रू आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, ताकि ये लाइफ में आपके बैठ जाए दिमाग में कि भाई किसी की पर्सनालिटी या अपनी पर्सनालिटी को हमको किस तरह दिन भर दिन इम्प्रूव करते चलना है, ठीक है। सो अनमोल इज सेइंग सर एवरीथिंग क्लियर है, रेस्ट गाइस आई वुड लव टू गेट अ रिस्पांस फ्रॉम यू।
embraced all. Thank you so much for your kind words. Muskan really means a lot to me as well. Aman, thank you so much. Ekdam clear hai. Thank you so much for that as well. Okay, perfect hai. Okay guys, it's getting perfect. Okay, very good. So you people have to learn. Piyush, I am pretty much sure that you have taken the attendance as well. Yes or no, maybe. Okay, so perhaps he might be going ahead and looking into the thing. Thank you so much. Okay, guys. Okay, perfect. Thank you so much, Piyush. I got your response as well. Okay, guys. Guys, कोई भी point में कोई problem? Any point that you have problem? I believe एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है? So P stands for promote optimism, यानी positive side of the life हमको देखनी है, and have a gratitude nature as well. ठीक है, ये हमको रखना है भाई. थैंकफुल नेचर है, मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करना है और बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं करना. नेक्स्ट थिंग है पीसी. सी का मतलब क्या हो? कम्युनिकेट क्लियरली. मैं सेंडर, आप रिसीवर. पंजाबी में बात कर रहा हूँ, कई लोगों को पंजाबी नहीं समझ में आती. कैसे कम्युनिकेशन होगा भाई? कोई चांस ही नहीं है कम्युनिकेशन हो पाए. तो फॉर कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि सेंडर जो बात कह रहा है रिसीवर तक पहुंचे थ्रू अ वाया चैनल, और उसमें कॉमन लैंग्वेज यूज करें आप. कॉमन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दूसरा चीज क्या मैंने बताया था, उसी में कर्टेसी यानी पोलाइटनेस रखें. और तीसरा स्ट्रेट टू द पॉइंट आप बात करें, ठीक है? तीसरा पीसीबी. बी का मतलब बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है. नॉट ओवर कॉन्फिडेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट यू नीड टू बी हैविंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट रखिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है? उसके बाद पीसीबी के बाद क्या? न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली स्टैंड्स फॉर, एन स्टैंड्स फॉर, एन स्टैंड्स फॉर बताइए, नेवर क्विट. नेवर क्विट, ठीक है? I told you that you need to go and chat with me. Okay, no problems. You need to go ahead and chat. I mean, never quit attitude कि आपको हार नहीं माननी, हमेशा आपको क्विट करना नहीं है, ठीक है? आपको हमेशा ये एटीट्यूड रखना है कि we should not go ahead and quit in life, right? अगर हार मिलेगी कोई बात नहीं, एक दूसरी बार तीसरी बार फिर प्लान बी रेडी करेंगे, वो भी नहीं होगा, प्लान सी देखेंगे, प्लान डी देखेंगे. बहुत सारा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है लाइफ में, बट इसको क्विट नहीं करना है. आपको ये मान के चलना, इट्स वन ऑफ द प्रीशियस थिंग दैट द गॉड हैज गिवन अस, एंड वी शुड आल्सो कीप इन माइंड कि ये हमें एक बार मिली है, हम इसे बार-बार खोएंगे नहीं. द नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपके लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट है इज द ड्रेसिंग सेंस. नहीं कह सकते अमन, यू शुड कॉल इट डिसेंट ड्रेसिंग. डिसेंट मतलब है कि आपको ओकेशन से तैयार होना है. तो भाई रात में सोते हुए फॉर्मल नहीं पहनना है, तो आपके ब्रेन को ये पता रहना चाहिए कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह निखरेगी, किस तरह इनहांस होगी. What dress I need to go and wear when I'm going for a party? What dress I need to go and carry when I'm going to a friend's birthday party? What dress I need to go and wear when I'm sleeping? What dress I need to carry when I'm going ahead and going on an occasion or something or the other? You need to keep in mind that decent. अब के सर मान लीजिए क्लास में आ रहे हैं, अब के सर का जो ड्रेस है वो फॉर्मली रहेगा. अब मैं किसी दिन आ जाऊँ हाफ पैंट पहन के, मुझे कई लोग इतना स्ट्रेंज तरीके से देखेंगे, भाई हाफ पैंट पहन के सर आए हैं पढ़ाने, तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा. और उसमें क्या होगा, जो मेरे जो बाकी पॉइंट्स है, ऑप्टिमिज्म, ग्रैटिट्यूड, फिर कम्युनिकेशन, फिर कॉन्फिडेंट, ठीक है, नेवर क्विट, ये सब क्या होता है, धीरे 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 डिटोरिएट होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, और ये मेरे टोटल पर्सनालिटी पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. तो ये पांचों पॉइंट जो मैंने आपको आज क्लास में बताया है, दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. Try implementing these 5 PCBND. हमेशा जिंदगी में याद रखना PCBND के बारे में कि सर ने बताया है. P stands for promote optimism and gratitude. C stands for communication. ठीक है. B stands for be confident. N stands for never quit. And D stands for dress decently. Guys, please आज मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा आप व्हाट्सएप के ऊपर कि आपको आज की क्लास कैसी लगी. Did you enjoy this class or not about the personality development as well? कल मैं इसको वाया स्लाइड्स के थ्रू करूंगा और इनहांस करके और ब्यूटीफाई करके, ताकि आपको कोई डाउट, तिनके भर का डाउट ना लगे कि हाउ टू इम्प्रूव. कई लोग ये कहेंगे सर इसका क्या फायदा हमें पढ़ा के. बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब, व्हेन यू आर गोइंग अहेड इन कंपनी. जब लेवल 1 से लेवल 7 तक पहुंचोगे, जब काम करोगे वहां पे, तब आपको पता चलेगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है. गाइस आज के लिए इतना काफी है, सफिशिएंट फ्रॉम माय साइड. इसके बाद केमिस्ट्री की आपकी क्लास है. You have a break, just take your break, relax करो अपने, ठीक है, and then we'll meet with tomorrow with full energy and full enthusiasm बाकी चीजों के लिए.
Please do comment.